तो ये हाँ, ये असाइनमेंट सेशन है और इसमें तो सर तुम्हारी तरफ से आवाज आ रहा है। स्टार्ट करें मैम? हाँ करो, पहले ये आवाज तो बैकग्राउंड वाला खत्म करो। कुछ कहीं पे तुम बैठे हुए हो शायद, छटाई छटाई हो रहा है शायद। मैम आप ठीक है? अब ठीक है। ये असाइनमेंट सेशन है और इसमें आज तुषार का पहला असाइनमेंट प्रेजेंट होगा एंड टॉपिक होगा क्या, प्रोबायोटिक, है ना, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, प्रोबायोटिक एंड बटर मिल्क, क्योंकि बटर मिल्क प्रोबायोटिक ही है तो इसलिए बटर मिल्क को साथ के साथ प्रेजेंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट तुषार। Good morning, ma'am. I am Tushar, ma'am. I am presenting my topic on probiotics. Probiotics are live microorganisms which, when administered in adequate amount, confer health benefit on the host. The mic, as for example, lactic acid bacteria and extra lactoacidophilus lactocacci. Lactic acid bacteria enjoying the grass are generally regarded as safe status and have been most frequently used. This status is based on historic association with fermented foods, which have been found to be safe and healthy. Several non generally regarded as safe status microbes are also being used, but they need to prove their safety by inappropriate safety trial. We can see in the presentation probiotic dairy products manufacturing. Friendly bacteria and unfriendly bacteria. Friendly bacteria are considered as probiotics. Probiotics is defined from Greek words meaning for life. Microbes used in dairy industry are commonly used in dairy industry are Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus cereus, Bifidobacteria. History was start in 20th century by Eli Maxev. Health benefits of probiotics are stimulation of the immune system response, increase of the lactose tolerance and digestion, positive influence in the intestinal microflores, reduction of intestinal pH, cholesterol reduction, production of the B vitamins, folic acid. So physiological benefits are increase in lactose intolerance, cholesterol reduction, vitamin B production, detoxification of carcinogens. Probiotic dairy products. First ever probiotic dairy product was adding acidophilus to milk. It helped people develop better tolerance and is fermented partially. Dairy products such as probiotic added fluid milk and yogurt. Types types are fermented milks and beverages or cheese. We can see fermented milks and beverages, which you drink yogurts with LA5 and carrot juices, biocoff, and in cheeses, dessert based on fresh cheese and some fruit pulp. Manufacturing processes. Acidophilus milk. Based on unfermented milk, sweet acidophilus milk, sweet AB milk, produced by adding concentrated probiotic bacteria to intensive heat treated milk. We can see the flow chart of acidophilus milk. Now probiotic yogurt, made with basically with live and active cultures, contain different kinds of bacteria believed to be beneficial to overall health. Difference between probiotic and regular yogurt is that third strain of bacteria in addition to the regular two. Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus L. acidophilus. Health benefits are promote and maximize digestion of certain nutrients in the human body, aids in digestion, help keep everything normal in regards to stress. Probiotic yogurt with plant extract. We can see the flowchart here. Cheese. Interesting way of supplying probiotic bacteria due to chemical composition of raw milk due to relatively low acidity compared to other products. Partition of milk into cheese and whey can be seen in this. Conclusion is that with the increasing popularity of probiotic products, consumers frequently demand that the health properties of probiotic strains be preserved. At least a theoretical chance that the health effects of the probiotic strains will be evident after consumption. Thank you. थैंक यू तुषार। तुम्हारा थोड़ा सा स्लाइड मोबाइल के कारण दिख नहीं रहा था, उसको हम एक बार और रन कर देते हैं, ठीक है? लैपटॉप से अच्छे से नजर आएगा।
तुम अपना स्टॉप कर लो शेयर। स्टॉप कर दिया मैम। अरविंद भी बटर मिल्क का तैयार किया है। अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन। नो मैम। अब दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा मैम, स्टार्ट शेयरिंग, हाँ आगे यस मैम। आया? अब आया यस प्रेजेंटेशन? मैम। तो तुषार का प्रेजेंटेशन था प्रोबायोटिक पे, ठीक है ना? अब मेरे ख्याल से ज्यादा विजिबल होगा। तुषार का थोड़ा सा स्लाइड दिख नहीं रहा था मोबाइल के कारण, स्क्रीन छोटा था इसलिए। ये अब क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? प्रोबायोटिक एक्सप्लेन तो वो सब कुछ कर ही दिया कि हमारे जो गट्स होते हैं, हमारा जो बॉडी होता है, ब्लड गट्स में बेसिकली हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक फ्रेंडली होता है, दूसरा अनफ्रेंडली होता है। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया को हम लोग प्रोबायोटिक कहते हैं, और इस कैटेगरी में कई तरह के कई तरह के बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस अल्वेरियस, Kisai, Thermophilus, etc., Bifidobacterium, Bifidum, etc. and unfriendly bacteria जो कि पैथोजेनिक होंगे, that means कि वो डिजीज कॉजिंग होगा। प्रोबायोटिक, प्रो यानी मतलब ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है लाइफ, और ये है तुम्हारा कि इसमें जो सिलेक्टेड मतलब कुछ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डाइटरी सप्लीमेंट में यूज करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और ये मैन एंड एनिमल उसके न्यूट्रिशन और मतलब उसके इंजेशन को, डाइजेशन को वो इम्प्रूव करता है। सो ये मतलब ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको कि उसने बताया ग्रास, ग्रास शब्द तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रास मतलब ग्रास लेवल का नहीं होता है, उसको हम लोग किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। सो जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ये ग्रास जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ये हिस्ट्री बेस्ड है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल रहे हैं। तो इस कैटेगरी में ये तीन तरह के बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केज़े, बिफिडोबैक्टीरियम, और जिसको कि हम लोग कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जो भी लैक्टिक एसिड ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं, उनको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसका जो स्टार्ट है, ये जो इस तरह से जो प्रोबायोटिक का जो कॉन्सेप्ट है, वो एली मैटकिनॉफ से शुरू हुआ था। बेसिकली ये मतलब कि इन्होंने प्रोबायोटिक एक मतलब एक टर्म दिया था, जो कि ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट करता है। और मैटकिनॉफ एंटीबॉडीज एंटीजेंट रिएक्शन में भी इनका काफ़ी रोल है, तो इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा ऐसा हिस्ट्री नहीं है। बस प्रोबायोटिक को तो शुरू में हम इसी तरह कह सकते हैं कि लोग शुरू में अपना दही वही खाते थे, और दही खाने से उनका डाइजेशन ठीक होने लगा। और फिर बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला कि दही में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसका फिर स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये लैक्टोबैसिलस इस तरह के हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना, एंटीबॉडीज के नंबर को इंक्रीज कराते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को एली मैटकिनॉफ ने दिया, और तभी से यहाँ पे प्रोबायोटिक का टर्म जो है वो शुरू हुआ।
प्रोबायोटिक के कई मतलब कि हेल्थ बेनिफिट है जो कि रिसर्च बेस्ड है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। ये सारा रिसर्च बेस है, कई रिसर्च जो है इस पे किए गए, माइस वगैरह पे रिसर्च करके देखा गया कि जो प्रोबायोटिक है वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा देता है। इसी तरह ये कई तरह की डायरिया को ठीक करता है। हम लोग जनरली, अगर इसका तो एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं, कई बार हम लोगों का पेट वगैरह जब खराब होता है तो हम लोगों को बोला जाता है दही खाने के लिए, और दही जो होता है वो उसमें एंटी डायरेटिक मतलब की प्रॉपर्टी होती है, एंटी डायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो डायरिया वगैरह से हमें बचाता है। इसी तरह जो प्रोबायोटिक है, अगर हम एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं तो जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा हमारे अंदर मर जाता है, उस नेचुरल माइक्रोफ्लोरा के रेस्टोरेशन में भी ये प्रोबायोटिक हेल्प करता है। और इसका कई बार हम बता चुके हैं कि जब भी आजकल जब भी एंटीबायोटिक दिया जाता है उसके साथ प्रोबायोटिक का एक्सेस दिया जाता है, ताकि हमारे अंदर जो भी जो यूजफुल माइक्रोफ्लोरा की कमी हो गई है वो फिर इस प्रोबायोटिक के थ्रू पूरा हो जाए। और ये जो प्रोबायोटिक है जो भी हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा है उनके ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी देखा गया है कि इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा पे इसका है। और ये पीएच के, क्योंकि ये एसिड का प्रोडक्शन करता है, प्रोबायोटिक जो होता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप का होता है, तो ये इंटेस्टाइनल पीएच के को ये कम करता है। इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, अमोनिया एंड अदर टॉक्सिक कंपाउंड्स का रिडक्शन, और ये फोलिक एसिड का प्रोडक्शन में, इन सब के रोल में, इन सब में प्रोबायोटिक का रोल देखा गया है। सो दीज आर द हेल्थ बेनिफिट, और इसको तुम आराम से ये इस तरह से बना सकते हो। और इसी को अगर मतलब प्रोबायोटिक का लॉन्ग टर्म में आ जाए, लॉन्ग में अगर आ जाए 5 मार्क्स में, तो सिंपल डेफिनेशन में अच्छे से एक लिख दोगे, और हेल्थ बेनिफिट पूछे तो इसको थोड़ा थोड़ा, इतने जो पॉइंट है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। इसी तरह फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है, ये कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन करता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन का, ये कई जो कार्सिनोजेनिक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, न्यूट्रल एवेबिलिटी को बढ़ाता है, टॉक्सिक कंपाउंड का रिमूवल करता है, कई जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ट्यूमर्स वगैरह इन सब में भी इसका जो है वो रोल देखा गया कि अगर हम प्रोबायोटिक को लेते हैं तो ट्यूमर, जो ट्यूमरोजेनिक सेल है उनका सप्रेशन, ये स्टडी किया गया है। अब कहता है कि जो सबसे पहले जो हमारा प्रोबायोटिक डेयरी प्रोडक्ट है वो है हमारा एसिडोफिलस मिल्क, और ये एसिडोफिलस मिल्क जो है वो वैसे इंसान को देते हैं जिनका मिल्क टॉलरेंस है, जिनको कि लैक्टोज से टॉलरेंस है, तो उनको एसिडोफिलस मिल्क रेकमेंड किया जाता है। और ये जो एसिडोफिलस मिल्क है ये फर्मेंटेड मिल्क है, फर्मेंटेड डेयरी मिल्क है। और डेयरी प्रोडक्ट जो मतलब जैसे प्रोबायोटिक को हम लोग फ्लूइड मिल्क या योगर्ट में भी मिक्स करके, कई तरह के अभी अमूल वगैरह का तुम देखते होगे कि प्रोबायोटिक योगर्ट और कई तरह के कॉन्सेप्ट आ गए हैं मार्केट में, उसमें बेसिकली कुछ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्थ बेनिफिट वाले हैं, खासकर लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरियम ग्रुप के, उनको उसमें एक एक्चुअल अमाउंट में ऐड किया जाता है। एक्चुअली हम लोग क्यों ऐड करते हैं, जैसे कर्ड में भी बहुत तरह का प्रोबायोटिक होता है, कर्ड में सफिशिएंट नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कर्ड का अगर कंट्रोल प्रोडक्शन नहीं हो तो ज़्यादा एसिडिटी डेवलप कर जाएगी, तो उसमें जो भी जो तुम्हारा प्रोबायोटिक ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस एसिड पे मर जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबायोटिक यानी कि एकदम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जितना मतलब कि सेल में चाहिए 10⁻³ जो है मिनिमम से 10⁻৯ सेल जो है वो डाला जाता है, इतना ताकि वो हमारे मतलब कि बॉडी में जाके अच्छा इफेक्ट करे। तो प्रोबायोटिक इसीलिए करते हैं, कहने के लिए, खाने के लिए हम लोग दही भी खाते हैं, और दही एक प्रोबायोटिक के रूप में बात है। घर में जो तुम लोग छाछ या मट्ठा खाते हो वो भी एक प्रोबायोटिक है, लेकिन यहाँ पे फिर प्रोबायोटिक कर्ड क्यों, भाई प्रोबायोटिक जब है ही तो फिर प्रोबायोटिक कर्ड क्यों बनाया। तो उसमें यही है कि कर्ड में हो सकता है कि जितना डिजायर्ड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं हो, तो हम प्रोबायोटिक कुछ एडिशनल उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के उसको एक प्रोबायोटिक कर्ड बना देते हैं। अब जो इसके हैं जैसे फर्मेंटेड मिल्क्स एंड बेवरेजेस हैं, ये भी तुम्हारा प्रोबायोटिक के ग्रुप्स में आते हैं। चीज जो होते हैं ये भी तुम्हारा, इसमें भी प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक सिंपली जो भी तुम्हारा लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जिस भी प्रोडक्ट में पाया जाएगा वो प्रोबायोटिक की कैटेगरी में आ जाएगा तुम्हारा। तो अब ये जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स है इसका कई मार्केट में भी अवेलेबल है, जैसे तुम्हारा
ड्रिंक योगर्ट विद LA5 एंड कैरोट जूस, ये बाइकोफ के नाम से आता है। और इसी तरह स्पारुलिना प्लांटिस, ये सारे जो है वो मार्केटेबल प्रोडक्ट है जो कि तुम्हारे मार्केट में अवेलेबल है। इंडिया में नहीं है, कहीं फॉरेन कंट्री में अवेलेबल होगा। इंडिया में प्रोबायोटिक के रूप में एक सिंपली एक याकुल्ट ही अवेलेबल है, बाकी ये सारे प्रोडक्ट जो है वो अभी नहीं आया उतना, हाँ उतना फेमस भी नहीं हो पा रहा है अभी, इसके कॉन्सेप्ट को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। इसी तरह कई तरह की जो चीज़ है जैसे कि एपेटाइजर टाइप फ्रेश चीज़ या प्रोबायोटिक टेलिमिया चीज़, दीज आर द चीज़। हम लोग तो नॉर्मल जो घर में जो चीज़ होता है वही खाते हैं, कॉटेज चीज़ वगैरह ही हमारे यहाँ प्रचलित है, उसमें भी सम अमाउंट ऑफ चीज़ जो है वो पाया जाता है। बट कुछ जो ये कमर्शियली अवेलेबल चीज़ है जिसमें कि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोबायोटिक पाया जाता है। अब इसका मैन्युफैक्चर तुम एसिडोफिलस मिल्क का कैसे करोगे भाई? जो एसिडोफिलस मिल्क है वो अनफर्मेंटेड मिल्क है, ये फर्मेंटेड नहीं है। और इसमें हम इसको दो कैटेगरी रखते हैं, एक स्वीट एसिडोफिलस मिल्क रखते हैं एंड दूसरा जो है वो स्वीट एबी मिल्क। एबी मिल्क का फुल फॉर्म एबी मिल्क ही बोल रहे हैं या इसका कुछ स्पेल कुछ है? Yes, ma'am. एबी मिल्क, स्वीट एबी मिल्क मतलब एक एवी मिल्क मैम, वैरायटी है मैम मिल्क का। क्यों नाम दिया गया? जैसे स्वीट हम्म। एसिडोफिलस मिल्क, स्वीट एबी मिल्क, मैम इनमें शायद बीटा अच्छा कैजिन प्रोटीन्स का कैजेन, लैक्टनेस होता है। अच्छा। Produced by adding concentrated probiotic bacteria to intensively heat treated milk। अच्छा ठीक है, ये इस तरह का इसका प्रोडक्शन बता रहा है। बाकी इसका फ्लो चार्ट तुम्हारा दिया हुआ है कि मिल्क को बहुत इंटेंसिव हीटिंग किया जाता है, लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाई 2 और या 1 into 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर या 20 मिनट। 90 पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे में भी 2 बार हीट करो उसको 20 मिनट के लिए। फिर उसको कूल किया जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कूल करने के बाद उसमें तुम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डाल दो, उसको इनक्यूबेट कर दो रात भर के लिए, दही जैसा थोड़ा सा जम जाएगा, है ना। और जो फाइनल उसको हम लोग चेक करते रहेंगे कि लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन 0.6 to 0.7% ही है। जैसे ही इतना कंसंट्रेशन पहुंचेगा इमीडिएटली हम उसको कूलिंग में कर देंगे और उसकी बॉटलिंग और स्टोरेज कर देंगे। ये 140 वाला है। अगर हम इस टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं 2 into 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको इमीडिएटली कह रहा है कि कूल कर दो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड उसी टाइम हम उसमें एडिशन करते हैं 1 into 10। देख रहे हो सेल का कंसंट्रेशन 1 into 10⁻10 लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस सेल पर ml। 1 ml में इतना सेल जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉटलिंग कर देते हो, स्टोरेज करते हो। ये सेल काउंट कैसे करोगे बताओ? तुम्हें लैब में बुलाया गया, किसी डेयरी इंडस्ट्री के लैब में गए और तुमको ये काम दे दिया गया। तुम सपोज करो कि तुम माइक्रोबायोलॉजी में तुमने एमटेक किया और तुमको बोल दिया कि भाई ये नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें काउंट करके बताओ कितना है, कैसे करोगे? लैब में बताओ, तुषार तुम बताओ। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। यस मैम। पंकज जी बस 5 मिनट में करते हैं कॉल, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बोलो प्रतीक्षा। हाँ विद्या, हाँ विद्या बोलो। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, अच्छा तब तबीयत ठीक है ना तुम्हारा पापा? तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? अच्छा उतना दिन अचानक से तुम चली लेना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाना बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ चलो प्रतीक्षा बताओ कैसे करोगी अगर तुमने माइक्रोबायोलॉजी लिया। माइक्रोबायोलॉजी से तुमने, चलो माइक्रोबायोलॉजी से तुमने एमटेक भी नहीं किया, तुमने बीटेक लेवल पे ही ज्वाइन कर लिया, तुम्हारा कोई कंपनी आया तुमको ले गया और तुमको बोला कि भाई तुम ना ये माइक्रो लैब तुमको दे दिया, ठीक है। अब ये जो एसिडोफिलस मिल्क बनेगा सब सेक्शन बांटा हुआ होगा ना भाई, जो मिल्क बनेगा
अब इस मिल्क में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना ये एसएनएफ है, ये सब तो चलो केमिस्ट्री वाले को दे देगा या डेयरी टेक्नोलॉजी वाले को दे देगा, ठीक है। तो तुमको अगर कह देगा कि भाई तुम ना इसका माइक्रोबियल काउंट करो, कैसे करोगी बताओ? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई बताओ। मैम प्लेट काउंट मेथड से। प्लेट काउंट सिंपल एसपीसी मेथड से करेंगे, है ना। सारा बस जो सैंपल तुमको दिया गया है ना, ये जो भी तुमको अगर मान लीजिए कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का कल्चर तुमको दे दिया गया, ठीक है, और तुमको कंफर्म करना है कि इसमें इतना सेल है भी कि नहीं है। हो सकता है कि कल्चर रहा तुम्हारा खराब हो जाए, तो तुम उसको पहले डालने के पहले तुम इस जो प्रोसेस है तुम्हारा, उसमें डालने के पहले तुमको नंबर ऑफ सेल चेक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, उसकी पहले प्लेटिंग जो मीडिया वगैरह बनाओगे लैब में, अपना मीडिया वगैरह बना के, और उसका जो सैंपल जो तुम्हारे पास कल्चर है उसका 1 इनोकुला लोगी, है ना, 1 इनोकुला लेके और उसकी प्लेटिंग कर दोगी, और वो सारा डाइल्यूशन मेथड सारा फॉलो होगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब डाइल्यूशन मेथड कहने का मतलब कि जो 1 ml उसका लेके उसको तुम 9 ml में डिसॉल्व करोगे, फिर 9 से फिर दूसरे में करोगी, फिर तीसरे में करोगी, मतलब लगभग तुम्हारा 10⁻³ तक जब तुम्हारा डाइल्यूशन हो जाए, उस नंबर पे तुम प्लेट में जो कॉलोनी अपीयर होगी उसको तुम काउंट करोगी, है ना। तो काउंट Yes. करोगी, हाँ, तो इतना तुम्हारा ये जो है ये कैसे है, नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन, है ना। जितना डाइल्यूशन होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये डाइल्यूशन कहाँ गया है, 10⁻10 पे भी इतना नंबर ऑफ सेल है। सोच रही हो 10⁻10 का मतलब क्या हुआ, 10⁻−10 तक डाइल्यूशन गया है। आया समझ में? अगर यहाँ पे 3 रहता तो क्या मतलब होता, -3 तक उसका डाइल्यूशन गया है। कंफ्यूजन है अभी भी, समझ नहीं पा रहे तुम लोग? कैसे करते हो, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का फॉर्मूला क्या है प्रशांत? नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टेकन। वॉल्यूम टेकन इसलिए है क्योंकि तुम 1 ही ml ले रहे हो, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, नीचे 1 आएगा, लेकिन डाइल्यूशन फैक्टर है तुम्हारा 10⁻−3, कहते हो ना भाई -3। वो डाइल्यूशन है कि 3 में तुम्हारा, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 रहता, तो तीसरे डाइल्यूशन में तुम्हारा 4 सेल आया, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ोगे कैसे, 4 × 10⁻3, यानी कि मतलब कितना हुआ, 4000, इतना 4000 सेल तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे तुम्हारा 1 × 10⁻10 का मतलब हो गया कि 10वें डाइल्यूशन तक तुम गए, है ना, उस डाइल्यूशन पे तुम्हारा कम से कम 1 सेल आना चाहिए, ठीक है। और ये इतना सेल है, 1 मल्टीप्लाई बाई अब 10 से इतना 10 10 10, ये 10 गुण सुनना लगाओ, उतना सेल है तुम्हारा 1 ml में। समझ में आया? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। प्रतीक्षा तुमको भी नहीं समझ में आया? मैम समझ गए। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस मैम। अब ये नहीं है ना कि इसमें ड्रॉ करना भी मुश्किल, ये हम लिखना चाह रहे हैं कि CFU यूनिट जो है तुम्हारा, तो बिना उसके नहीं होगा। पेन इसका काम नहीं करता।
मुश्किल है इस पे लिखना। बेसिकली CFU का फार्मूला बताओ तुम लोग, फार्मूला तुम लोग देखो तो कहीं पे CFU का कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का फार्मूला भूल गए तुम लोग प्रैक्टिकल में, SPC मेथड। हाँ कहाँ है यार? बोलो, कोई नहीं बोल रहा, सब भाग गए क्या तुम लोग? मैम नंबर ऑफ सेल इनटू डाइल्यूशन बाय वॉल्यूम अभी तो बताया। हाँ तो ये तुम लोग इतना सोच क्यों रहे हो, तुम लोग को याद नहीं है? बताओ, सब भूल गए तुम लोग? प्रशांत हो कि गायब हो तुम? सब हमको लगता है कि ऑन करके गायब हो गया है। चलो एनीवे, Yes, ma'am. उसके बाद इसका बॉटलिंग कर देना है एंड इसको स्टोर कर देना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बटर मिल्क तो तुम लोग मार्केट में पिए होगे, अमूल का बटर मिल्क तो आता है, पिए हो कि नहीं तुम लोग? Yes, ma'am. हल्का खट्टा सा लगता है। अब दूसरा है तुम्हारा प्रोबायोटिक यगर्ट। भाई प्रोबायोटिक यगर्ट, नहीं किया यगर्ट खुद मैम, ही, हाँ नहीं किया मैम। बटर मिल्क नहीं, बटर मिल्क मिलता है, अमूल का बटर मिल्क है मार्केट में। मैम नहीं एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, बताया नहीं गया मैम, लोग पढ़े भी नहीं थे बटर मिल्क। इस सेमेस्टर में नहीं था शायद, पिछले सेमेस्टर में नहीं था बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब इन जनरल जैसे दही जानते हो, जैसे चीज जानते हो, वैसे ही बटर मिल्क नहीं जानते हो। छाछ, इंडियन छाछ जानते हो ना? यस मैम। दही को आदमी मह देता है और उसका जो पानी रह जाता है, दही से अगर तुम्हारा निकल जाएगा बटर, दही, हाँ दही से अगर निकल जाएगा बटर, जो बटर तुम्हारा दूध वाला जो छाली निकलता है ना भाई, छाली को फिर क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन करा दिया जाता है, ये डाल के, दही डाल के, उसके बाद उसको मह लिया जाता है, उसका दही, उसका घी निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो पानी रहता है तो उसको फेंक दिया जाता है नॉर्मली। लेकिन ये जो वाटर होता है ना, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। वही बटर मिल्क, छाछ जो गांव में तुम लोग कहते हो ना, हम लोग मट्ठा छाछ जो पीते हैं ना, तो क्या है, बटर मिल्क है, ठीक है। अब यस ये, मैम। हाँ ये तुम्हारा प्रोबायोटिक यगर्ट, यगर्ट खुद ही एक तरह का प्रोबायोटिक है समझो तो, लेकिन क्योंकि उतना सफिशिएंट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ पे बता दिया है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक एंड रेगुलर यगर्ट, क्योंकि यगर्ट में हम जान रहे हैं कि ऑलरेडी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कह रहा है कि थर्ड स्टैंड ऑफ बैक्टीरिया इन इट, जो तुम्हारा नॉर्मल यगर्ट होता है उसमें तुम्हारा 2 ही तरह का बैक्टीरिया पाया जाएगा, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है। लेकिन ये जो इसके साथ एसिडोफिलस को भी ऐड किया जाता है, यही तुम्हारा एक रेगुलर यगर्ट एंड प्रोबायोटिक में डिफरेंस है ना। यगर्ट और दही में बस यही है कि दही में तुम्हारा एक लैक्टोबैसिलस होगा, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस होगा, लेकिन यगर्ट में ये दोनों पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये दोनों ही पाया जाता है। और यगर्ट जो होता है वो समवट हाई टेम्परेचर पे उसको बनाया जाता है, बहुत कम टाइम लगता है, यगर्ट कमर्शियली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अगर प्रोबायोटिक कह दियो तो प्रोबायोटिक कहने का मतलब कि उसमें ये तीसरा बैक्टीरिया भी तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैम। अब हेल्थ बेनिफिट सब जानते हो भाई, दही खाने का क्या फायदा है भाई, जिसको दूध नहीं पचता है वो दही खाता है, ठीक है। तो कई तरह के अस्थमा एंड एलर्जिक जो रिएक्शन होता है उससे ये बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कहा जाता है कि भाई मिल्क में कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और दही में तो वो तुम्हारा लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाता है। तो इस तरह से कहता है कि जो कोलेस्ट्रॉल वाले जो पर्सन होते हैं उनको बोलता है कि दूध की बजाय तुम दही ही पी लो। और ये जो है वो डाइजेशन वगैरह में, पहले का लोग खूब दही छाछ वगैरह खाता था, देखते तो कितना उन लोग का सब कुछ एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त रहता था, है ना। तो ये सारा जो है वो पहले का ही बनाया हुआ है, उसको कमर्शियली लेवल पे ले आया गया, लेकिन ये तो सब हमारे इंडियन किचन में ऑलरेडी पहले से बनता था, है ना। हमको मैम मिल्क एलर्जी था पहले। अच्छा तुमको मिल्क एलर्जी, हाँ कई लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है,
तो उन लोगों को, जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होता है, उन लोगों को बोला जाता है कि तुम यही दही खाओ, दही सबसे बेटर होता है, ठीक है। अब प्रोबायोटिक योगर्ट विथ प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये एक अलग है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसमें तुम प्लांट का एक्सट्रैक्ट डाल दो या कुछ फ्रूट का एक्सट्रैक्ट डाल दो, ये तो एक्सपेरिमेंट होता रहेगा, ये इसमें किसी का एक्सपेरिमेंट है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है। ये चीज है, चीज भी प्रोबायोटिक की कैटेगरी में आता है, और मतलब कि चीज को तो पता ही है कि पहले तुम कडल कराते हो, कडल करने में भी तुम्हारा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है ना। और उसके बाद अगर तुम्हारा कुछ फ्लेवर्ड चीज वगैरह का प्रोडक्शन होना है तो उसमें फिर अदर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाओगे, मिलाओगे, तो सारे जो है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए चीज को भी एक तुम्हारा बनाया गया है। ये मिल्क को चीज एंड वे में, मिल्क जो है उसको चीज एंड वे में किया गया। बेसिकली देख लो, जो चीज निकालने के बाद जो वे रहता है, उस वे में 87% तो वाटर होता है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रोटीन होता है ना। जैसे ये तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा जैसे दिखा दिया कि टोटल प्रोटीन जैसे देखो 0.8 kg इसमें रहता है ना। केजीन जो है वो 0.1 kg होता है, ठीक है। और चीज में हालांकि 2.5 kg होता है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ जो बहुत जरूरी प्रोटीन होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है, वो सारा तुम्हारा वे में चला जाता है। तो ये सब ये इसको दिखाने का मतलब यही है कि मिल्क जो जब हम चीज बनाएंगे तो वो चीज एंड वे में चेंज कर जाएगा। चीज का तुम्हारा कंपोजिशन ये है एंड वे का तुम्हारा कंपोजिशन ये है, और वे में भी तुम्हारा काफी अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन्स, केजीन, मतलब कई तरह के वे प्रोटीन जो कि तुम्हारा सिर्फ वे में पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, ये सारे जो है वो इसमें ही पाए जाते हैं। और यहाँ पे तुम देखो लैक्टोज मोस्टली जो मतलब लैक्टोज होता है, ये तुम्हारा वे में ही पाया जाता है। तो वे भी एक बहुत हेल्दी ड्रिंक आता है, ऑल दो ये बहुत ज्यादा पीने में उतना मजा नहीं आता है। हम लोग लैब में इसका किए भी थे ना, वे में क्या क्या मिला के तुम लोग को पिलवाए थे तो फ्लेवर वगैरह और चीनी वगैरह मिला के उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन करा के ट्राई किए थे। हम लोग गए थे जो बांटने, तुम लोग गए थे कि नहीं? हम लोग बस्ती में हम लोग गए थे, बच्चों लोग को हम लोग एक हम लोग नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे हम लोग। हम नहीं लोग गए थे, गए नहीं थे यार। तुम लोग नहीं गए होगे, नहीं गए थे मैम, नहीं गए थे। तुम्हारे पहले वाला बैच गया है। चलेंगे मैम एक बार। गए थे तुम्हारे PDP गए थे। पीडीपी नहीं, ये बच्चों के बीच में जो बस्ती बोल रही है मैम, बस्ती अरविंद, बस्ती बोल रही है, पीडीपी नहीं। पीडीपी नहीं, अच्छा बच्चों के बीच में मिल्क डे के दिन 2 बार मिल्क डे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला। और बच्चों को यही वे ड्रिंक हम लोग दिए थे, जिसमें कि हम लोग वे में क्या किए थे कि थोड़ा फर्मेंटेशन करा दिए थे दही डाल के, और कहाँ फिर का बच्चा था मैम? बच्चा यहाँ कॉलेज के पास था। तो पीछे क्या, हॉस्टल के पीछे कौन गाँव है, वहां पे एक बार हम लोग गए थे, और एक बार हम लोग इधर आए थे, मतलब राजा बाजार। राजा बाजार, हाँ राजा बाजार वाले के पीछे गए थे। और एक बार हम लोग बहुत सारे बच्चा मिलता है। हाँ गर्ल्स हॉस्टल के पीछे हम लोग गए थे, वहां पे उन लोगों को पिलाए थे, बच्चा लोग पिया था बेचारा। सो कंक्लूजन यही है कि जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट का जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और अभी इंडिया में थोड़ा कम पॉपुलैरिटी है, बहुत जो हाई क्लास के लोग हैं उन्हीं को पता है कि ये प्रोबायोटिक क्या है और क्या नहीं है ना, और वही लोग लेते हैं। और अभी ये बाहर ही ज़्यादा अभी पॉपुलर हुआ है, ठीक है। बट जैसे जैसे पॉपुलर होगा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोबायोटिक एंड एसिडोफिलस मिल्क। अब नेक्स्ट में जो होगा वो बटर मिल्क अरविंद का करवा देंगे, और चीज शुरू कर देंगे। चीज लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। चीज किसको दिया हुआ है? रोल नंबर, चीज किसको दिया हुआ है? चीज रोल मैम नंबर, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स का मैम मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रहा है मैम। हाँ डे बाय डे बढ़ रहा है प्रोबायोटिक का। अब जैसे जैसे बीमारी जो है वो बढ़ रहा है, इम्यूनिटी जो नेचुरल चीज इम्यूनिटी बूस्टर है उसका तो डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक ये पॉपुलर नहीं हुआ है ना। प्रोबायोटिक तुम जान रहे हो, हम जान रहे हैं, याकुल्ट, अदरवाइज याकुल्ट का प्रचार इतना होने के बावजूद याकुल्ट कहाँ नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है, बहुत कम, कहीं किसी मेडिसिन की दुकान पे मिल जाएगा या किसी अमूल वगैरह जो रखता है उसके पास मिल जाएगा। अदरवाइज तो ये नॉर्मल मार्केट में भी है ही नहीं।
टाइम लगेगा बट। रोल नंबर 18 किसका है? यस मैम। बताओ रोल नंबर 18। सिमैया, सिमैया का है? सिमैया तुम्हारा रोल नंबर है ये? यस मैम। अच्छा, तो सिमैया तुम चीज पे तैयार रखना, ठीक ना? मैम कब? नेक्स्ट वीक, अब इस वीक का तो क्लास खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक, ओके मैम। ठीक ना? ठीक ठीक, चलो चलो, सुबह क्लास हो गया तो अच्छा हुआ ना, अब फिर बैठे रहते हो